Hello my dear students. Today we are going to discuss about part 3 of this particular chapter, that is getting to know plants. In previous parts we have discussed about shoot systems, and now we are in that shoot system we discussed about stem. Today we are going to discuss about flower, parts of flowers, roots, and what are the types of roots and what are the modifications found in roots, and then we will do some assignment work. So let's start with the flower. Flowers are the most attractive part of the plant which are found on the stems, and they are having variety of color, and that are the major part of attraction for us, for other insects and for other animals. So let's see what are the major parts are found in the flower. The first part is sepals. Sepals are green in color and they looks like leaf, but they are having variety of structure, and the major role played by sepals are to the protection of what? Protection of flower. When flower is in bud condition, it protects the flower, and when it is in blooming state, it is in bloom condition, it supports the flower. So this is the major role played by sepal. The next one is petals. These are the major part which attracts us, which attracts insects, which attracts other animals, because they are brightly colored and they are having variety of color. Like sometime you will get a red color as in China rose, uh, uh, pink color as in common our rose, yellow color as in nerium. So many colors are there, variety of color, even white colors are there. So group of sepal is known as calyx. At the same time, group of petals is known as corolla. So let's move towards next one. These are the other part, we will discuss about this later. Next part is stamen. Stamen is having two part. One is anther, that is box like structure, you can say. It is found on the top, that is anther, and the filament like structure, this is delicate structure, long structure, that is filament. So anther and filament together makes stamen, and this is the major part which is known as male reproductive part of the plant. The next part is pistil. This is the female reproductive part, and it is having three major portion. One is the stigma, that is the upper part. Second one the style, that is the middle part, and the last one is the ovary. So pistil is having three parts: stigma, style and ovary, as you can see in diagrams. So this is the female reproductive part of a flower. Okay. So ovary is found inside the pistil. It is found in the base, and inside ovary you will get ovules. After fertilization, ovules changes into seeds and ovary converts into fruit. So inside the fruit we will get seeds. So this is the major thing you can get in a flower. In this particular diagram you can see that what are the major part of a flower altogether. So stamens are the male reproductive part. It is having two major part, that is filament and anther, and inside anther you will get pollen or pollen grains. So this is all about male reproductive part. Now we are talking about female reproductive part. Pistil is also known as carpel, as it is written. You can see in this diagram, pistil is also known as carpel, and pistil is having three major portion, that is uppermost is stigma, middle one is style, and last one is ovary, and inside ovary you will get ovules. And we discussed about sepals and petals, and the last one is stalk, where all flower is arranged.
So here we are seeing green corner. Green corner, it is written that besides providing us with food and several useful products, plants helps to maintain the delicate balance of gases in nature. आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि फिर से हमारे काम आता है। तो ये हुआ कि पौधे हमारे लिए किस तरीके से अलग अलग तरीके से हमारे लिए इतने हेल्पफुल हैं। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम पौधे को जितना हो सके प्रोटेक्ट कर सकें, उन्हें ग्रो करने के चांस दे सकें, और जैसे पौधे बिना किसी सेल्फिशनेस के हमको सब कुछ देते हैं, उसी तरीके से हमें भी पौधों को जितना हो सके उनके ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हों हमें प्रोवाइड करते रहना चाहिए। इफ़ यू प्रोटेक्ट द नेचर, नेचर विल प्रोटेक्ट यू, एंड नेचर इज़ always protective for us. If we are in touch with nature, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और अगर आप नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं तो नेचर कभी आपको बीमार होने नहीं देगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि स्टेमन जो है उसके दो पोर्शन होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। पिस्टिल या कार्पेल के तीन पोर्शन होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एंड डाउन साइड इनसाइड द ओवरी यू कैन सी ओव्यूल्स। पेटल्स, अगर पेटल की बात करते हैं तो अकेले को पेटल कहते हैं, और ढेर सारे पेटल की बात करते हैं तो उसे कोरोला कहते हैं। सेपल को अकेले कहेंगे तो सेपल कहेंगे, ढेर सारे सेपल की जब बात करेंगे, प्लूरल की बात करेंगे तो कैलिक्स कहते हैं। और रिसेप्टिकल ऐसी चीज़ होती है, इसका मतलब उस पर सारा जो पोर्शन है, पूरा फ्लावर जो है वो पूरी तरीके से अटैच होता है। अब हम बात करते हैं रूट्स के बारे में। ये ऐसा पोर्शन है जो कि बहुत सारे पौधों में आपको बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन जो रोल ये प्ले करता है वो बहुत ही इनक्रेडिबल है। ये इनक्रेडिबल रोल हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर रूट्स ना हो तो फिर समझ लीजिए कि पौधे का सर्वाइवल मुश्किल है और किसी किसी सिचुएशन में नामुमकिन है। तो रूट्स क्या करती हैं? ये अंडरग्राउंड होती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं। किसके लिए करती हैं? पौधों के लिए करती हैं। दूसरा काम का क्या करती हैं? ये होल्ड करती हैं किसे? पौधे को। कहाँ? मिट्टी में अपराइट, बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांगली, फर्मली ये होल्ड करती हैं, जिससे कि पौधा अच्छे तरीके से, आप देखिए आपके सामने सालों साल खड़ा हुआ दिखाई देता है और अच्छे से ग्रो करता है। सम टाइम ये दे प्लेज very important role as storage of food. Sometimes they play role of anchoring, sometime extra support. So these are the major role played by the roots. Let's read further. So there are two major types of roots. One is fibrous root, another one is tap root. Here in this diagram you can see what is fibrous root and how a tap root look like. तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो फाइब्रस रूट है वहाँ पे आपको फाइबर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कि बेस से डायरेक्टली निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। टैप रूट सिस्टम में आपको जो दिखाई दे रहा है वो एक मेजर रूट दिखाई दे रही है, और उसके साथ ढेर सारी रूट्स हेयर या आपको साइड रूट्स दिखाई दे रही हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। तो टैप रूट, in this type of system you can see a prominent root that is long, and the bunch of smaller roots that grows from the main root are called lateral root. तो इसमें टैप रूट में आपको एक prominent root मिली और दूसरा lateral root मिली। It is hard to pull out plant with tap roots as these go deep within the soil. इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई पौधा जिसके पास टैप रूट सिस्टम है, जब आप उसे उखाड़ने जाएंगे, अनप्लग करने जाएंगे ज़मीन से, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसकी रूट जो है वो काफ़ी अंदर तक गई है, उसने मिट्टी को काफ़ी अच्छे से होल्ड किया हुआ है। और ये कहाँ पाया जाएगा? टैप रूट सिस्टम कहाँ पाया जाएगा? ये वहाँ पाया जाएगा जिस पौधे में रेटिकुलेट वेनेशन है। आपको बताया था रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब,
arrangement of veins in form of net like fashion, reticulate fashion is known as reticulate venation. कौन कौन से एग्जाम्पल थे? चना था, कैरेट, टर्निप, चाइना रोज, मैंगो, एंड देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स विच आर हैविंग टैप रूट सिस्टम. अब हम देखते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम. तो फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या है कि जैसा कि आपने उसमें देखा, टैप रूट सिस्टम में देखा कि एक प्राइमिनेंट रूट थी और बाकी लैटरल रूट थी. यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है. यहाँ सारे रूट्स जो होती हैं फाइबर के फॉर्म में होती हैं, पतली पतली होती हैं और सारी इक्वल होती हैं. और कहाँ से निकलती हैं? सीधा पौधे के बेस से निकलती हैं. ऐसे पौधों को ज़मीन से उखाड़ना काफ़ी आसान होता है क्योंकि ये टैप रूट की तुलना में काफ़ी ऊपर होती हैं. ये ज़मीन में काफ़ी अंदर तक नहीं जाती हैं, इसलिए ऐसे पौधों को अपरूट करना काफ़ी आसान होता है. कहाँ ये ऐसी रूट्स पाई जाएंगी? जिसमें पैरेलल वेनेशन होता है. पैरेलल वेनेशन में बताया था कि एक वेन जो होती है दूसरे के पैरेलल चलती है लीफ में. कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ें पाई जाएंगी? मेज में होता है, वीट में होता है, अनियन में होता है, बैम्बू में होता है, बनाना में होता है, एंड देयर आर मेनी मोर प्लांट्स विच आर हैविंग parallel venation. If these are having parallel venation means they are having fibrous root system. तो हमें लग रहा है कि आप चीज़ों को पकड़ रहे हैं. अब हम देखते हैं रूट हेयर. रूट हेयर कहाँ कैसे होते हैं? These are hair like structure on the branches of roots. ये रूट के ब्रांचेस में पाए जाते हैं रूट हेयर्स. ये क्या करते हैं? ये भी वाटर को एब्जॉर्ब करने में, मिनरल को एब्जॉर्ब करने में पौधे की मदद करते हैं, रूट्स की मदद करते हैं. बात करते हैं लैटरल रूट्स की. तो लैटरल रूट को आपने बताया था ये टैप रूट सिस्टम का पार्ट होता है जिसमें एक प्रोमिनेंट रूट होती है और जो दूसरी जो सेकेंडरी रूट होती है उसे लैटरल रूट कहते हैं. एक बार फिर से हम रिवाइज करके देखते हैं. जिस भी पौधे में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है उस पौधे में टैप रूट सिस्टम भी पाया जाता है. इस बात को आप ध्यान रखेंगे. और जिस पौधे में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है उस पौधे में फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है. आप इस बात को अच्छे तरीके से देख सकते हैं. आप अपने कम्युनिटी में जाके देख सकते हैं कि जिस पौधे में टैप रूट सिस्टम है इसका मतलब वहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन होगा. जिस पौधे में फाइब्रस रूट सिस्टम है वहाँ पे पैरेलल वेनेशन, एंड वाइस वर्सा. आप उल्टा करके भी देख सकते हैं. तो ये चीज़ें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग समझ में आएंगी अगर आप जाके प्रैक्टिकली देखने का प्रयास करेंगे कि किस पौधे में कौन सा रूट सिस्टम है. और आप ऊपर से ही बता सकते हैं कि अगर उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है तो इसमें टैप रूट सिस्टम होगा, अगर उसमें पैरेलल वेनेशन है तो वहाँ पर आपको फाइब्रस रूट सिस्टम मिलेगा. तो आप देखते हैं रूट मॉडिफिकेशन के बारे में. तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्या है. ज़रूरत होती है पौधा कहाँ ग्रो कर रहा है, पौधे में क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से रूट्स अपने आप को मॉडिफाई करती हैं. जैसे स्टेम अपने आप को मॉडिफाई किया, स्टेम टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया. समटाइम आपने देखा कि स्टेम जो फूड स्टोर कर रहा है, कभी कभी आपने देखा कि स्टेम जो है फोटोसिंथेसिस कर रहा है. ये ऐसा इसलिए कि पौधा उस कंडीशन में सर्वाइव कर सके. उसी तरीके से रूट्स में भी आप देखेंगे कि रूट्स भी अलग अलग पौधों में अलग अलग काम करती है. तो सबसे पहला काम आप देख रहे हैं ये क्या करती है? फूड का स्टोरेज करती है. कहाँ देख रहे हैं आप? यहाँ देख रहे हैं ये रूट है जो कि फ्लैशी दिखाई दे रही है, फूड का स्टोरेज कर रही है. कहाँ कहाँ? रेडिश में, कैरेट में, टर्निप में, स्वीट पोटैटो में, बीट रूट में. ये सब चीज़ें जो हैं ये फूड का स्टोरेज है. तो पहला फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड. ये हो गया हमारा रूट मॉडिफिकेशन में. दूसरा फंक्शन आप जब देख रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन का है. मल्टीप्लिकेशन का मतलब एक पौधे से दूसरा पौधा, दूसरे से तीसरा पौधा, ऐसे अपने जनरेशन को, अपने नंबर्स को बढ़ाना. ये हुआ मल्टीप्लिकेशन. और ये क्या हुआ? एसेक्सुअल मेथड. यहाँ पे कोई भी फ्लावर पार्ट, सेक्सुअल पार्ट इन्वॉल्व नहीं है. तो आप क्या करते हैं, किसमें देखते हैं ऐसे कौन से पौधे हैं जो उसके डहेलिया है, एस्पैरेगस है, इनमें रूट्स को जब आप कट करके अलग से शो करेंगे, इसकी बुआई करेंगे ज़मीन में, तो आपको नया पौधा मिलेगा. तीसरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉप रूट सिस्टम आप देख रहे हैं. प्रॉप रूट का मतलब ये एडिशनल रूट्स आपको निकल के दिखाई दे रही हैं. यहाँ से देखिए ऊपर से ब्रांच से नीचे की तरफ आई और ये ज़मीन में चली गई. ये प्रॉप रूट सिस्टम है. इसका मतलब क्या है? ये
पॉप अप करके निकलती हैं, अचानक से ऊपर से ऐसे आराम से निकली, और देखिए ढेर सारे रूट्स आपको निकलती दिखाए। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये बरगद का पेड़ है। किसका है? बरगद का पेड़ है। ऐसे आपके मक्के के भी पौधे में आपको ऐसी ब्रांचेस दिखाई देंगी, बाजरे के भी पौधे में ऐसी ब्रांचेस दिखाई देंगी। इसका मतलब क्या होता है? ये क्रॉप रूट क्या करती हैं? ये एडिशनल सपोर्ट देती हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं, पौधे को और भी स्टेबल बनाती हैं कि वो अच्छे से होल्ड कर सके ज़मीन को। शुगर केन में भी आपको ऐसा मिलेगा। ये क्रॉप रूट सिस्टम एडिशनल सपोर्ट के लिए होता है। चौथा जो आप यहाँ देख लीजिए, इसमें या तीसरा आप कह लीजिए कि ये जो है न्यूट्रिशन का काम करते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट में पैरासिटिक रूट्स पाई जाती हैं जो कि दूसरे पौधे से, दूसरे पेड़ से इनको मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं। चौथा जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, क्या करते हैं? क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं, ये क्लाइंब करने में मदद करती हैं। मनी प्लांट आपके घर में है, आप देख लीजिए मनी प्लांट में जो रूट्स निकलती हैं वो ज़मीन को या दीवार को या किसी ऑब्जेक्ट को कितने आसानी से फर्मली उसे पकड़ लेती हैं, जिससे कि मनी प्लांट ईजिली जो है वो ग्रो करता है। जहाँ भी वो ग्रो करना चाहता है, कहीं किसी के ऊपर क्लाइंब करके ग्रो करना चाहता है, बड़ी आसानी से ग्रो करता है। तो these are the root modification you can see that is found in roots। तो कौन कौन से मॉडिफिकेशन दिया? सबसे पहले आपने देखा कि स्टोरेज देखा, स्टोरेज ऑफ फूड कहाँ कहाँ देखा? इसमें आपने देखा बीट रूट में स्टोरेज है, कैरेट में स्टोरेज है, स्वीट पोटैटो में स्टोरेज है। ये सब फूड का स्टोरेज है और इसे हम कंज्यूम करते हैं अपने डेली फूड में, हम कंज्यूम करते हैं। हम गाजर खाते हैं, हम चुकंदर खाते हैं, हम स्वीट पोटैटो खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम खाते हैं एक्चुअली दे आर रूट्स, एंड वी आर गेटिंग वेराइटी ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी सोर्सेज फ्रॉम दीज रूट्स। ये मॉडिफिकेशन तो कभी क्लाइंबिंग में मदद करती हैं, कभी मिनरल एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं, कभी सपोर्ट के काम में आती हैं, कभी मल्टीप्लिकेशन के काम में आती हैं। तो ये सब मॉडिफिकेशन। तो इसमें हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि फ्लावर क्या है, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये जो सेपल्स हैं इनका क्या फंक्शन है, पेटल का क्या फंक्शन है। उसके बाद हमने देखा कि रूट्स क्या है, रूट्स का क्या फंक्शन है, कितने टाइप के रूट्स हैं। आपने फाइब्रस रूट सिस्टम को देखा, टैप रूट सिस्टम को देखा, फिर रूट मॉडिफिकेशंस को देखा, और रूट मॉडिफाई करके क्या क्या काम करती हैं उसको देखा। तो इस तरीके से हमने अपने डिस्कशन के पोर्शन को कंप्लीट कर दिया। अब बात आती है हमारे असाइनमेंट की। तो आपको एज यूजुअल नोट्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, और आपको और भी कुछ एग्जाम्पल देने हैं कि कौन कौन से मॉडिफिकेशंस आपने स्टेम में देखे और क्या क्या और भी मॉडिफिकेशन होते हैं, कौन कौन से मॉडिफिकेशन रूट्स में देखे, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। ये सब आप अपने नोटबुक में ऐड करेंगे। एंड दीज आर द रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर आई हैव कलेक्टेड द मटेरियल। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।